So, what is research? It is the creation of knowledge in a logical and systematic way. You pursue your research in a objective manner, in a systematic way. You can't just move around in your research in a haphazard manner. You will do the research in an objective way, following certain steps, certain prerequisites that we are going to study today. What are those prerequisites? What are those steps? Uh, so, whether you are solving a scientific problem, a social problem, an economical problem, a problem related to your defense industry, a problem related to religion, or any problem, irrespective of the domain, you will be following certain steps. Now, one important question that you must understand the difference between a research method and research methodology. Research methods versus research methodology. Research methods are the various procedures, schemes and algorithms used in research. रिसर्च मेथड्स जो है वो टेक्निक्स हैं जो आप अपनी रिसर्च के दौरान अप्लाई कर रहे होंगे, जबकि रिसर्च मेथडोलॉजी वो स्टेप्स हैं जो रिसर्च में लेने हैं। उन स्टेप्स के अंदर आप डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आप जो है इंटरव्यू इंटरव्यू के थ्रू डेटा गैदर कर रहे हैं, सर्वे के थ्रू डेटा गैदर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन से डेटा गैदर कर रहे हैं, तो ये टेक्निक्स हैं जिसमें कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होंगी, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स होंगी, एनालिटिकल मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेरिवेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेटा मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकता है आपके पास। जबकि रिसर्च मेथडोलॉजी वो सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है जिसके थ्रू जो है आप रिसर्च करते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि रिसर्च क्यों की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यह है रिसर्च करने का कि यू वांट अ डिग्री, आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू डू रिसर्च इन ऑर्डर टू accomplish, in order to acquire a degree. You are getting a master's degree or a PhD degree, you need to do research. Then for प्रमोशन के लिए आप जो है जैसे आप HSC का क्राइटेरिया देखें फॉर फैकल्टी अपॉइंटमेंट, so in order for becoming a professor you need to publish 15 research papers. Out of those 15 research papers, 10 of them must be in last 5 years. And then obviously to get a good job, आप पोस्ट डॉक्टोरल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाह रहे हैं, तो देयर आर रिक्वायरमेंट्स फॉर having some publications. You need to do research, obviously. And out of curiosity, there are people who wants to solve the problem of the society, who wants fame, who wants recognition. So there are different factors that could play in making you pursuing your research. But above all, to serve the society. For all of our problems, the solution lies in doing research. जब आप तहकीक करेंगे, you go into the depth of a problem, so you need to do research for that कि ये problem क्यों आ रही है और इसके solution क्या मिलेगा. That is what research is all about. तो हमारी problems का solution, हमारी society का problems जो है, whatever those problems are, the solution lies in doing research. हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम, हमारी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, सब कुछ सॉल्व हो सकता है रिसर्च के थ्रू। नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की बात की जा रही है आजकल कि किसी मुल्क के पास अगर बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इट डजेंट मीन कि जो है उसका जीडीपी बहुत अच्छा होगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इवन दो कि वहाँ पे इतनी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है,
एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पाकिस्तान के पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं एज कम्पेयर टू सऊदी अरबिया, ईरान, जिनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, मिनरल्स, but their GDP is not so high. The problem is they are not investing in research, they are not conducting research. For example, हम श्रीलंका की ही बात कर लें, they are an educated country, they have a lot of people who are graduates, but even though their literacy rate is around 97%, but they are not considered an advanced country बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। पीपल आर नॉट डूइंग रिसर्च। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं, बट दे आर नॉट कंडक्टिंग रिसर्च। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी का मकसद होना चाहिए, टू क्रिएट न्यू नॉलेज बाय डूइंग इन्वेस्टिगेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस। तो मकसद क्या है रिसर्च का? इन्वेस्टिगेट करना किसी भी प्रॉब्लम को। कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने कोई सोल्यूशन बनाया, उसको इन्वेस्टिगेट किया, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपके पास जो भी रिजल्ट्स आए उसको पब्लिश करना। कोई और बंदा जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको मज़ीद आगे बढ़ा सकता है। तो फ्यू इयर्स बैक फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड देयर वाज नो यूनिवर्सिटी इन द टॉप 500 रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। टॉप 500 तो मैंने बहुत लीनियंट क्राइटेरिया बताया है, बट अगर आप लोग जो है कभी स्टडी करने के लिए जाना चाहें तो ट्राई टू गेट एन एडमिशन इन दी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज। दुनिया की रैंकिंग ज़रूर देखें कहीं भी, अगर आपने एडमिशन लेना है अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है दुनिया की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से किसी यूनिवर्सिटी में ट्राई टू गेट एडमिशन। तो ये लेटेस्ट रैंकिंग है। So you can see the countries from United States, Switzerland, and United Kingdom are in the top 10 ranking of the universities. And the reason being they are focused in research. तो रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के लिए। और रैंकिंग की जहाँ तक की बात है, ये क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग है। इसके अलावा टाइम्स है, उनकी रैंकिंग होती है, शंघाई की रैंकिंग होती है। तो मुख्तलिफ रैंकिंग एजेंसीज हैं, दे रैंक द यूनिवर्सिटीज इन दी वर्ल्ड। तो ये क्यूएस की रैंकिंग है, और भी रैंकिंग्स होती हैं इसके अलावा। तो वाई शुड आई डू रिसर्च? According to Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. तो दुनिया में कोई भी तब्दीली लाना चाहते हैं आप, तो उस तब्दीली को लाने का जो ज़रिया हो सकता है वो तालीम हो सकती है। तो तालीम, तहकीक, रिसर्च, इसी के थ्रू आप जो है दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। एंड देयर आर सेवरल एवेन्यूज फॉर रिसर्च इन पाकिस्तान। बहुत सारी जगहों पे रिसर्च हो सकती है। टेररिज्म हमारी कंट्री का एक प्रॉब्लम है, इस पर रिसर्च हो सकती है। आपके पास बिग डेटा का कोर्स है आपका, तो बिग डेटा पे जब आप काम करेंगे तो आप फॉर एग्जांपल सर्वेलेंस के लिए आप सॉल्यूशंस बना सकते हैं। फेसबुक पे आप जो है सोशल नेटवर्क है, उस पे जो है आप किस तरीके से जो है इवेंट्स को जो है कैप्चर कर सकते हैं कि व्हाट इवेंट्स, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑन सोशल मीडिया, जिसके थ्रू यू कैन कंट्रोल हेट स्पीचेस और सेक्टेरियन वायलेंस, इस तरह की चीज़ों को यू कैन कंट्रोल। देन ऑब्वियसली आईसीटी सॉल्यूशंस भी बना सकते हैं, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस आप बना सकते हैं फॉर काउंटरिंग दी टेररिज्म। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे बड़ा काम किया जा सकता है।
जब डिज़ास्टर आता है, कम्युनिकेशन पूरी बैठ जाती है, तो वहाँ पे आप नेटवर्किंग किस तरीके से करेंगे? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली इकोनॉमी पे रिसर्च हो सकती है कि डेटा साइंस पे आप जा सकते हैं, बिग डेटा इकोनॉमी का मौजूद है कि पाकिस्तान को किस पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। सो यू शुड हैव द डेटा एंड यू कैन एनालाइज द डेटा यूजिंग बिग डेटा टेक्निक्स। हेल्थ केयर के ऊपर रिसर्च हो सकती है, हेल्थ केयर सेक्टर पे आप जो है इतना डेटा अवेलेबल है, उसको एनालाइज करके आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर पे जितनी भी रिसर्च हो रही है, आप कैंसर का क्योर डिस्कवर कर सकते हैं। डीएनए जो है, डीएनए को एनालाइज करें, डीएनए के डेटा को एनालाइज करें, डीएनए सीक्वेंसेस को एनालाइज करें। तो यहाँ पे भी बिग डेटा की ज़रूरत है। एजुकेशन सेक्टर पे काम हो सकता है, एजुकेशनल डेटा इतना जनरेट हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसको आप एनालाइज करके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर में तो बहुत काम हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज एरियाज आर डायरेक्टली लिंक टू योर कोर्स। बिग डेटा पे जब आप काम करना चाहें तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक पिक कर सकते हैं और उस पर बिग डेटा अप्लाई कर सकते हैं। So how to conduct research? First of all, prepare yourself psychologically. साइकोलॉजिकली जो है जहनी तौर पर तैयार हो जाए। सो इज बीइंग अ टॉप स्टूडेंट इनफ? इज द रिसर्च ओनली फॉर जीनियसेस? नो, नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट। टॉप स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, they were not good student in their academics, but when they started doing research they performed really well. आपके पास एडिसन की मिसाल है, एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब बनाने के लिए, सिर्फ उसमें से 9,999 एक्सपेरिमेंट्स अनसक्सेसफुल हुए, लेकिन वो कंसिस्टेंटली काम करता रहा, अपनी गलतियों से सीखता रहा, स्टेप हर स्टेप पे इम्प्रूवमेंट लाता रहा। तो एक सिस्टमैटिक वे में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट ला रहा था। ठीक है, बजाय इसके कि एक एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया तो उसी एक्सपेरिमेंट को अगर मॉडिफाई ना किया जाए, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट कर दिया जाए, तो दैट इज़ नॉट गुड। आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो है लास्ट एक्सपेरिमेंट से आपने कोई लेसन लर्न किया एंड देन यू मॉडिफाई योर एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन योर लास्ट एक्सपीरियंस, देन ग्रेजुअली आप जो है अपने सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं। So do you know your intellectual or mental limit? Are you ready for failures? क्या आप नाकामी के लिए तैयार है? ऑब्वियसली, जैसे मैंने एग्जांपल दी, दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल हैं। आप KFC जो फाउंडर था, KFC का जो फाउंडर था, कॉलोनल सैंडर्स नाम था आई थिंक, तो उसने जो है 65 ईयर्स में जाके KFC की बुनियाद रखी। उससे पहले वो ज़िंदगी में कई बार नाकाम हुआ, वो फ़ौज में गया, फ़ौज में नाकाम हुआ, इसी तरीके से शादी की उसमें नाकाम हुआ, एजुकेशन में नाकाम हुआ, एकेडमिक्स में नाकाम हुआ। 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास जो है कुछ पैसे थे, चंद डॉलर्स थे। देन ही स्टार्टेड अ बिजनेस। तो आफ्टर सो मच फेलियर्स, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए दैट यू कैन डू समथिंग। सो यू शुड बी रेडी फॉर फेलियर्स बट यू शुड नॉट, कहते हैं ना कि गिव अप करना, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप ना करें। आप कंसिस्टेंटली जो है अपने सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करते रहें। आर यू एक्सट्रीमली मोटिवेटेड? मोटिवेशन, ऑब्वियसली फेलियर्स आएंगे, मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। ऑल यू नीड इज़ पैशन। और ये बात याद रखें, कोई भी काम करे दुनिया में, नॉट ओनली रिसर्च, कोई भी काम करें तो उसको जो है
आप अपनी हॉबी बना के, अपना पैशन बना के करें काम, so that you enjoy it. आप एक फ्लो डेवलप कर सकें कि आप काम करते जाएं एंड you don't feel a heavy heart over that. दिल से काम करें, तो फ्लो डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है एक काम को अच्छे तरीके से करने के लिए. तो व्हाट इज़ गुड रिसर्च? नोवेलिटी. रिसर्च में नोवेलिटी होनी चाहिए. रिसर्च जब आप कंडक्ट करेंगे तो रिसर्च में नोवेलिटी होनी चाहिए. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी इशू, आई होप कि ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी प्रॉपरली एंड देयर आर नो इश्यूज, राइट? जस्ट गिव मी योर फीडबैक. Yes, sir, no issues. ठीक है. तो व्हाट इज़ अ गुड रिसर्च? नोवेलिटी. रिसर्च में नोवेलिटी होना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप रिसर्च करेंगे तो उसमें कोई नई बात होना ज़रूरी है. ठीक है, भले आपका पेपर पब्लिश ना हो, लेकिन रिसर्च जो है एक तो आपकी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करे, और वो फाइंडिंग्स ऐसी होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन दुनिया के लिए अहम होनी चाहिए, और वो फाइंडिंग्स आपसे पहले, वो बात आपसे पहले किसी ने ना की हो. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई इनोवेशन, कोई आप इजाद कर लें, इन्वेंशन आप बना लें, बल्कि बात कोई नहीं होनी चाहिए. ठीक है, रिसर्च में इजाद करना तो इट्स अ वेरी बिग टास्क, कोई चीज़ बना देना. बट आप कोई नई बात कह दें, किसी बात को नए तरीके से कह दें, तो ये भी एक रिसर्च है. रिसर्च शुड बी सिंपल. जब आप पेपर लिखने बैठे, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो बिगनर्स होते हैं, दे ट्राई टू राइट वेरी ल्यूक्रेटिव सेंटेंसेस, वेरी कलरफुल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने के बजाय ऐसे पेश करें अपने रिसर्च आर्टिकल को, घुमा फिरा के, बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बना के. रिसर्च को प्रेजेंट करने का तरीका ये है, इतने आसान लफ्ज़ों में, इतने सादा लफ्ज़ों में आप प्रेजेंट करें कि हर किसी की समझ में आए आपने करा क्या है, बजाय इसके कि आप उसको घुमाएं, एक सीधी सादी बात को आप घुमा फिरा के पेश करें. ट्राई टू बी सिंपल. इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश का मकसद ही यही होता है, टू मेक इट as simple as possible. Don't try to use too much vocabs, right? And research should be universal. अगर मेरी लैब में कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर कोई उसको रिप्रोड्यूस करे, तो he should also get the same result. How to do research, how to conduct research? There are certain misunderstandings. Thinking that research is only for geniuses, ऐसा नहीं है. रिसर्च में कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है. आप जो है एक प्रॉब्लम पे डिटर्मिनेशन के साथ काम करते रहें, फोकस्ड होके काम करते रहें. फोकस होना बड़ा ज़रूरी है. एक ही टॉपिक पे फोकस होके काम करें, बजाय इसके कि 5 टॉपिक पे एक साथ काम शुरू कर दें. थिंकिंग दैट यू आर अ जीनियस, ये भी गलत है. ट्राई टू बी हम्बल. And thinking that you must know everything about this subject in advance, that is also not necessary कि आपको अपने सब्जेक्ट के मुतालिक इन एडवांस सब कुछ पता हो. आप किसी एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उस टॉपिक के मुतालिक आप रेलिवेंट लिटरेचर को पढ़ें और काम शुरू कर दें. आपको ज़रूरत नहीं है कि इस टॉपिक के अलावा जो उस एरिया के अंदर पेपर्स हैं उसके बारे में भी सब कुछ पता हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी. यू शुड फोकस योरसेल्फ. एक पर्टिकुलर डोमेन के मुतालिक हर पेपर्स आप पढ़े डेफिनेटली, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस टॉपिक से हट के जो उस डोमेन के और पेपर्स हैं उसके बारे में भी आपको महारत हो, सब कुछ पता हो. एंड थिंकिंग दैट यू शुड वेट फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम टू वर्क ऑन, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी. हर प्रॉब्लम की अहमियत है, सिग्निफिकेंस है. As soon as के people are working on it, you find the relevant literature on that topic. उस topic पे आपको relevant literature मिले,
तो इसका मतलब है that problem has significance, you can start working on that problem. हाँ, अगर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई भी काम नहीं कर रहा, then that is not a research topic because people are not working. Rarely, अगर आप जो है कोई big shot है, you are a very expert person in the domain, then you can start a new domain, you can start a new topic. बट नॉर्मली कोशिश ये करें कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं वो टॉपिक वही हो जिस पे और लोग भी काम कर रहे हो, रेलिवेंट लिटरेचर मिल रहा हो कम से कम, एंड थिंकिंग दैट अ सोल्यूशन इज करेक्ट बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग. तो आपने किसी भी प्रॉब्लम को सही साबित करने के लिए, सोल्यूशन को सही साबित करने के लिए, यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, you need to do experimentation. And if you are not doing an experiment, then that is not a research. That is just an idea in your mind. So idea में और research में ये फ़र्क होता है. आइडिया आपके दिमाग में है, लेकिन जब तक कि उसको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए वो रिसर्च नहीं होती. So how to do research? Be both confident and humble. हम्बल होना बहुत ज़रूरी है. कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी है. कोलैबोरेट करें अपने दूसरे लोगों के साथ. बी बोथ क्रिटिकल एंड कोलैबोरेटिव. क्रिटिकल होना भी ज़रूरी है. जैसे अभी इंशाल्लाह आई विल डिस्कस कि हाउ टू स्टडी अ पेपर, तो क्रिटिकल होना भी ज़रूरी है. बी बोथ एम्बिशियस एंड रियलिस्टिक. एम्बिशियस होना, ऑब्वियसली मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है. रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स रखें अपने रिसर्च के. बी प्रोएक्टिव एंड विलिंग टू टेक अ चांस. हाउ डज डूइंग रिसर्च फील लाइक? रिसर्च करना कैसा लगता है? एन एंडलेस साइकिल बिटवीन एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन. तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, खासतौर पर दोस्त वांट्स टू डू हायर स्टडीज. तो रिसर्च इज एन एंडलेस साइकिल of excitement and depression. Sometimes you will feel very excited, sometimes you will feel depressed, right? And then the cycle between sense of success and failure. So sometimes आप जो है बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल रही होगी, यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ योर रिसर्च, एंड समटाइम्स जैसे मैंने एग्जांपल दी आइंस्टाइन की कि आपको जो है कई दफ़ा नाकाम होना पड़ेगा. द रिजल्ट्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट, एंड दैट मे बी कि कोई आप इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कोई इशू हो, कोई वेरिएबल आप इग्नोर कर रहे हो. एन एंडलेस साइकिल बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट. ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट, तो you sometimes you have that sort of feeling कि आप जो है सेल्फ डाउट का शिकार हो जाए. आपको जो है कोई चीज 100% करेक्ट भी हो, बट यू आर फीलिंग डाउटफुल अबाउट दैट. तो रिसर्च नीड्स फेथ. रिसर्च जो है आपको बिलीफ होना चाहिए अपने आप पे, मोटिवेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, बट ऑब्वियसली you should be humble, realistic, and try to discover new things, obviously to make the world a better place, to solve the problems of your people. यहाँ तक के तो हमने थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई कि रिसर्च जो है कैसे करनी चाहिए, कैसे फील होती है आपको when you are performing research. Now let's have a look at various steps of research. अब रिसर्च कंडक्ट कैसे की जाएगी? तो यू स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक. एक ब्रॉड टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे,
For example, you want to conduct your research in डीप लर्निंग, आप डीप लर्निंग में रिसर्च करना चाहोगे, और डीप लर्निंग में यू फॉर एग्जांपल फोकस्ड ऑन सीक्वेंशियल डेटा, टाइम सीरीज डेटा पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो। अब टाइम सीरीज डेटा पे, सीक्वेंशियल डेटा पे आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों ने काम किया है, और आपको पता चलता है कि सीक्वेंशियल डेटा पे एक प्रॉब्लम आती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पर पहुँच के आप बोलोगे यार मैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यू डिफाइन योर रिसर्च प्रॉब्लम कि मैं इस टॉपिक पे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें से किसी एक चैलेंज को पकड़ लिया आपने। आपको टाइम सीरीज डेटा पे कई प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मॉडलिंग सीक्वेंशियल डेटा, रिमेम्बरिंग पास्ट मेमोरी, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स होंगी। यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रही है, तो हाउ विल आई एड्रेस दिस प्रॉब्लम। देन आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है यू स्टडी the past work on the same problem. In the particular problem that you are trying to work on, there are already many research papers available on that topic. So people are working on that domain, that problem. तो आप उसको analyze करोगे, and then you will analyze and find the research gaps. Okay, in that particular domain, there are a lot of material available, lot of references available, but people have not analyzed the solution from this particular point of view. If domain say is angle say no one has looked at the problem इस पर्टिकुलर तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, देन यू विल फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस कि अगर मैं फॉर एग्जांपल LSTM has been used for modeling time series data, GRU has been used, gated recurrent unit has been used for modeling time series data, इसी तरीके से RNN has been used for modeling time series data, but LSTM इवन दो के वो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देता है, GRU भी सॉल्व कर देता है, लेकिन टू फर्दर रिफाइन दी सोल्यूशन, क्या हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई नया सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। तो आप जो है फॉर एग्जांपल यू से कि वी आर डेवलपिंग अ मॉडिफाइड LSTM मॉडल, एक मॉडिफाइड LSTM मॉडल हम बना रहे हैं जिसमें LSTM में 3 गेट्स होते हैं, मैं 4 गेट्स लगा के देखता हूँ, और मेरा हाइपोथेसिस ये बनता है कि इफ आई ट्राई टू यूज 4 गेट्स in the LSTM, in the modified LSTM, then we get improved performance, we get uh, we would be able to train larger models, बड़े size के network को, and we would be able to modeling the long term dependencies, ज़्यादा memory को remember कर सकते हैं past की by using modified LSTM। ये हमारा hypothesis होगा, but we have to prove it। हाइपोथेसिस तो ये है कि ये चीज़ होगी ऐसी, क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, डेट वी हैव टू प्रूव थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। अब आप जब एक्सपेरिमेंट पे जाओगे तो आप जो है रिसर्च डिज़ाइन करोगे कि हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बड़े साइज़ का LSTM मॉडल बनाता हूँ, जिसमें जो है मैं एक तो ये है कि मैं बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम को एड्रेस करूँ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पास के डेटा को रिमेंबर करूं, और दूसरी प्रॉब्लम अगर बड़े साइज का नेटवर्क है उसको मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहूँ, तो आप जो है इसको प्लान करोगे रिसर्च डिज़ाइन में कि एक एक्सपेरिमेंट करूंगा जिसमें मैं बहुत सारा डेटा लूंगा, जिसमें बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे और जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स होंगे, एंड देन आई पास इट थ्रू LSTM
दी मॉडिफाइड LSTM, उस मॉडिफाइड LSTM से मैं उसको गुजारूंगा और मैं देखूंगा कि किन पैरामीटर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या लर्निंग सही हो रही है, क्या नेटवर्क हमारा लर्न कर पा रहा है। तो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन में आई वुड ट्राई टू गेट द रिजल्ट्स कि इसको यूज़ करने से क्या मेरी एक्यूरेसी पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्या वो क्लासिफिकेशन टास्क प्रॉपरली परफॉर्म कर सक रहा है, नहीं कर सक रहा। जब मैं इसको गुजारूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, जो भी डेटा आएगा उसको गैदर करके देन आई विल ट्राई टू इंटरप्रेट दैट रिजल्ट कि हाँ, मॉडिफाइड LSTM को इस्तेमाल करने से, एक एडिशनल गेट के इस्तेमाल करने से जो बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम हो रही है वो फॉर एग्जांपल नाउन्स के केस में तो सही काम कर रहा है, लेकिन प्रोनाउंस के केस में जब प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल ये आपको रिजल्ट से सामने आ रहे हैं, रिजल्ट को जब आप इंटरप्रेट करोगे कि इस इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इट इज़ वर्किंग गुड बट इट इज़ नॉट वर्किंग इन जनरल, देन यू विल रिपोर्ट योर रिसर्च। रिपोर्ट से मुराद ये है कि आप इसको पब्लिश कराओगे, आप दुनिया को रिपोर्ट करोगे कि आई हैव इन्वेस्टिगेटेड दिस प्रॉब्लम एंड आई फाउंड द फॉलोइंग सॉल्यूशन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो टिल नाउ आई होप everything is clear, right? Please give me your feedback. Yes, sir. Yes, sir. Good to. Okay, right. So let's move ahead. तो आई हैव टोल्ड यू कि हमने जो है रिसर्च किस तरीके से करनी है। रिसर्च करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से है कि आप एक ब्रॉड प्रॉब्लम को, ब्रॉड एरिया को सेलेक्ट करते हैं। यू स्टार्ट विद अ ब्रॉड एरिया एंड देन आफ्टर डूइंग आप आफ्टर स्टडिंग लिटरेचर, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मटेरियल आप पढ़ोगे, आप देखोगे कि डीप लर्निंग में इतनी रिसर्च हो रही है एंड देन you you find out that people are working in LSTM models on टाइम सीरीज डेटा है, टाइम सीरीज डेटा पे लोग काम कर रहे हैं, LSTM पे काम कर रहे हैं, GRU पे काम कर रहे हैं। तो इतना काम हो रहा है, देन यू आइडेंटिफाइड दैट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसके ऊपर जो है काम किया जा सकता है। आप उस पर लिटरेचर देखते हो और आपको समझ में आता है कि अच्छा, कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम जो है दैट कुड बी एड्रेस्ड बाय यूजिंग अ मॉडिफाइड LSTM मॉडल। फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करते हो। तो जैसे मैंने बताया, विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन इट इज़ जस्ट एन आइडिया, राइट। ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट बट इट इज़ नॉट एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। भले आप कहते रहो कि मैं ये कह रहा हूँ कि इससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप जस्टिफिकेशन देते रहो, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या इक्वेशंस के थ्रू। एनालिटिकली आप प्रूफ करने जाओ या आप जो है एक्सपेरिमेंट या सिमुलेशन के थ्रू आप प्रूफ करोगे। वंस यू हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड अक्वायर्ड द डेटा, उस डेटा को एनालाइज करने की फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास। डिफरेंट डेटा साइंस की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट जो है statistical techniques हैं that can be used to analyze your data। different टेस्ट हैं, टी टेस्ट है, PLS SAM को इस्तेमाल किया जा सकता है and then various other types of tests that are available and you can take the help from those models to test your data और फिर वहाँ से आप कोई चीज़ प्रूव कर सकते हो। वंस आपके पास रिसर्च से ये चीज़ें इस्टेब्लिश्ड होती हैं, देन यू कैन रिपोर्ट दिस रिसर्च। और कई तरीके हैं रिसर्च को रिपोर्ट करने के। आइदर यू प्रेजेंट इट इनटू अ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस से मुराद ये है कि आप वहाँ पे जाके प्रेजेंट करेंगे अपने आइडिया को, अपने फाइंडिंग्स को, ना सिर्फ ये कि आपका आइडिया, उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स को आप रिपोर्ट करते हैं। और समटाइम्स नॉर्मली इन द कंप्यूटर साइंस की डोमेन में तो ऐसे ही होता है कि जो कॉन्फ्रेंस में आप प्रेजेंट करते हो उसको जो है आप
एक पेपर फॉर्म में भी जो है, एक शॉर्ट पेपर की फॉर्म में आप उसकी प्रोसीडिंग्स में वो पब्लिश होता है। तो कॉन्फ्रेंस का पेपर भी जो है पब्लिश होता है। बिजनेसेस या दूसरे डोमेन्स के अंदर नॉर्मली कॉन्फ्रेंस पेपर्स जो होते हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट जो है पब्लिश किए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के डोमेन में कॉन्फ्रेंस को उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो पब्लिश होती हैं, जिसमें आपके पेपर, आपका जो काम है उसको भी जो है पब्लिश किया जाता है। देन जर्नल, कॉन्फ्रेंस पेपर जो है नॉर्मली 6 पेज का, 7 पेज का होता है। एंड यू रिपोर्ट इनिशियल रिजल्ट्स। आइडिया इज टू register your concept, you register your innovation as soon as possible. Normally journal takes a lot of time for publication. If you are publishing in a very good journal, it may take 1 year or 2 year for the review process and for the publication process. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका आइडिया है, आपका कॉन्सेप्ट है, जिसको आपने फाइंडिंग्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन से इनोवेशन सामने आ रही है, उसको आप जल्द अज जल्द अपने नाम से रजिस्टर कराओ। तो आप क्या करोगे, कॉन्फ्रेंस में भेजें। कॉन्फ्रेंस में 2 महीने 3 महीने में आपका पेपर जो है पब्लिश हो जाएगा, राइट। द आइडिया इज कि कॉन्फ्रेंस में जल्द अज जल्द जो है अपने नाम के साथ इस आइडिया को रजिस्टर करा लिया जाए। जर्नल में आप भेजेंगे, जर्नल में ऑब्वियसली आपकी इन डेप्थ स्टडी होगी, और जर्नल पेपर इज मोर डिटेल्ड, नॉर्मली 20 पेजेस का होता है। अच्छे जर्नल में अगर आप पब्लिश करें तो जर्नल में जो है पब्लिश करने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो इफ यू वांट टू रजिस्टर योर आइडिया एज सून एज पॉसिबल, कॉन्फ्रेंस में भेजें। जर्नल में भेजेंगे तो जर्नल में टाइम लगेगा, लेकिन जो है आपका जो एक्चुअल जो काम है ना, जो सामने आता है वो जर्नल के थ्रू आता है। तो ट्राई टू स्टडी गुड जर्नल पेपर्स, क्योंकि जर्नल पेपर्स में काम जो है डिटेल्ड होता है, और उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, या बहुत जगहों पे डिग्री की भी रिक्वायरमेंट होती है दैट यू पब्लिश योर पेपर इन सम गुड जर्नल। देन बुक चैप्टर्स भी आप जो है, so here I would like to mention the difference between an edited book and an authored book. एडिटेड बुक से मुराद ये है कि उस बुक के डिफरेंट सेक्शंस होंगे, डिफरेंट चैप्टर्स होंगे that are written by different authors. So for example, one of the chapter is written by some authors from Malaysia. Then another chapter may be written by authors from UK. Then some other people may write a portion of the book, and finally there are editors, 1 or 2 editors, they combine all of these chapters from different authors and then they publish a book. लेकिन यहाँ पर थीम जो है, एक थीम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के ऊपर आप एक बुक निकालना चाह रहे हैं, तो कुछ चैप्टर आपने मलेशिया से लिखवाए, कुछ चैप्टर आपने यूके से लिखवाए, कुछ चैप्टर यूएसए में कोई बंदा था उससे लिखवाए। तो जो भी जो है इंटरेस्टेड होंगे ऑथर, वो जो है डिफरेंट चैप्टर्स लिख के आपको देंगे, एंड देन आप उसको कंबाइन करेंगे। वो तमाम जो है चैप्टर्स एडहॉक नेटवर्क से रिलेटेड होंगे, देन यू कंबाइन देम एंड यू पब्लिश इट वन कॉमन थीम, जो कि बुक का टाइटल होगा। तो दैट इज एन एडिटेड बुक। बट ऑथर्ड बुक में क्या होगा, आप पूरी बुक जो है कुछ ऑथर्स ने मिलकर लिखी होगी, 2 ऑथर होंगे या 1 ऑथर होगा, पूरी बुक उसी ने लिखी होगी। इंडिविजुअल चैप्टर्स जो है अलग अलग ऑथर से नहीं होंगे, बल्कि सेम सेट ऑफ ऑथर्स आर राइटिंग द होल बुक। पूरा फ्लो नजर आएगा आपको उसके अंदर। देन थीसिस, आप जो है जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होंगे ड्यूरिंग योर मास्टर्स और पीएचडी, यू माइट बी राइटिंग थीसिस, जिसमें आपने उस डिग्री की कंप्लीशन के दौरान जो रिसर्च की होगी उसको रिपोर्ट करोगे।
तो थीसिस में भी आप जो है अपना काम प्रेजेंट करते हैं। एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स, अगर आप किसी रिसर्च सेंटर के अंडर काम कर रहे हैं तो यू कैन राइट टेक्निकल रिपोर्ट्स, जिसमें आप जो है अपनी रिसर्च को रिपोर्ट कर रहे होंगे। रिसर्च सेंटर की तरफ से उस रिपोर्ट को एक नंबर भी मिलेगा। तो जब आप अपना पेपर लिख रहे होंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, तो आप जो है उस पेपर में कॉन्फ्रेंस को भी साइड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर को भी, जर्नल पेपर को भी, बुक चैप्टर्स को भी, किसी बुक को भी साइड कर सकते हैं, थीसिस को भी साइड किया जा सकता है, या टेक्निकल रिपोर्ट को भी आप साइड कर सकते हैं। नाउ लेट मी ब्रीफली डिस्कस अबाउट अ रिसर्च रिपोर्ट। एक रिसर्च रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हो तो उसमें क्या सेक्शंस होंगे? नॉर्मली यही सेक्शंस होते हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस का पेपर हो या जर्नल का पेपर हो। यू स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्ट, then introduction, literature review, methods, results, conclusion and discussions, and references। किसी भी रिसर्च पेपर का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला सेक्शन एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये एक तरीके से आप अपने पेपर की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अपने पेपर की समरी बता रहे हो। जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है ना, उसी तरीके से आप अपने पेपर की मार्केटिंग कर रहे हो। हमारे पेपर में ये चीजें हैं, हमने ये काम किया है। कोई भी बंदा उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है तो उससे आइडिया लगा लेता है कि वेदर ही शुड स्टडी द पेपर कंप्लीटली और नॉट। क्या ये पेपर उसके डोमेन का है या नहीं है, क्या ये पेपर की वर्थ क्या है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप पूरे पेपर की समरी बताते हो कि हमने इस टॉपिक पे काम किया है और इस टॉपिक पे हमने ये टेक्निक अप्लाई की है और हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं। तो कोशिश करें कि पहले एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ा करें पेपर्स के, और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेपर जो है वर्थफुल टू रीड और नॉट। पूरे पेपर को पढ़ने से पहले एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेपर को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो 95% चांस है कि आप जो है आपके पेपर का एब्स्ट्रैक्ट जो है पढ़ा जाए। 5% चांस ये है कि उसके पढ़ने के बाद जो है बंदा जो है उस पेपर को कंप्लीटली डाउनलोड करके पढ़ रहा हो। ठीक है ना, 95% केस में तो ऐसा होगा कि वो पेपर जो है स्किप हो जाए। 5% केसेस में ऐसा होता है कि यानी 100 बार अगर आपके पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा गया तो 5 दफा जो है उसको डाउनलोड किया गया होगा अप्रोक्सीमेटली। देन इंट्रोडक्शन सेक्शन। पेपर जब आप लिखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने अपने पेपर की समरी बता दी। इंट्रोडक्शन में आप पेपर को एक ब्रॉड एरिया से, जो कि फैमिलियर होगा यूजर को, जो भी रीडर है उसको पता होगा, एक जनरल आइडिया तो होगा कि एडहॉक नेटवर्क क्या होता है। तो एडहॉक नेटवर्क से लेते लेते उसको यू टेक इट टू द एक्चुअल टॉपिक। एडहॉक नेटवर्क से स्टार्ट करके आप डिस्कशन करते करते उसको एक नैरोअर कॉन्टेक्स्ट में लेकर आओगे, ब्रॉडर से नैरोअर कॉन्टेक्स्ट में। कि एक जनरल आइडिया, एडहॉक नेटवर्क एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। लेकिन जब आप एडहॉक नेटवर्क के अंदर राउटिंग पे लेकर आओगे तो ये आपका टॉपिक है जिस पे उसको लेकर आ रहे हो। उसको शायद अंदाजा ना हो कि राउटिंग के अंदर क्या चैलेंजेस होंगे एडहॉक नेटवर्क के। तो आप लेट्स वेट फॉर 5 minutes फॉर द प्रेयर्स टू कंप्लीट, फॉर द प्रेयर कॉल टू बी announced, and then we will continue. Okay, sir.
Okay, my dear students. So in the introduction, you start from a broader context, a general context. जैसे मोबाइल एडहॉक नेटवर्क सबको आइडिया होगा, लेकिन आप वहां से डिस्कशन को स्टार्ट करोगे एंड ग्रेजुअली आप रीडर को लेकर आओगे राउटिंग की प्रॉब्लम पे, जो कि आपके पेपर का एक्चुअल टॉपिक है. तो यू स्टार्ट फ्रॉम अ जनरल कॉन्टेक्स्ट एंड यू टेक द रीडर टू द नैरोअर कॉन्टेक्स्ट. वहां पे लाके आप अपना हाइपोथेसिस डिस्कस करोगे कि ये हाइपोथेसिस बिल्ड करोगे कि हम जो है ये चीज एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं. समटाइम्स इंट्रोडक्शन में लिटरेचर रिव्यू भी बता दिया जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी. लिटरेचर रिव्यू नॉर्मली जो है एक अलग सेक्शन होता है. लिटरेचर रिव्यू में आप अपने रीडर को बताते हो कि द टॉपिक दैट आई एम वर्किंग ऑन, it is a very recent topic, very relevant topic and other people are working on it. और लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं इस टॉपिक पे. फोकस आपका नैरोअर होना चाहिए, पिन पॉइंटेड टू योर टॉपिक. अपने टॉपिक पे पिन पॉइंटेड होके आप जो है बताओगे कि इस टॉपिक के ऊपर जो है कितने लोगों ने रिसर्च की है, क्या रिसर्च की है, क्या इस टॉपिक के बारे में स्कॉलर्स की राय है, जो दूसरे लोग रिसर्च कर रहे हैं वो क्या समझते हैं इस टॉपिक के बारे में, और उन्होंने किस तरीके से टैकल करने की कोशिश की है इस प्रॉब्लम को. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो मुख्तलिफ पेपर्स को समराइज तो कर देते हैं, लेकिन जो है वो कहते हैं ये एक रिसर्च पेपर तैयार हो गया. ये नॉर्मली एक लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन होता है, दूसरे पेपर्स की समरी बताना. नॉर्मली ये रिसर्च नहीं कहलाती, अनलेस कि आपने जो है बड़ा साइंटिफिक तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में आ, उसको जो है रिव्यू किया हो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, और फिर उसमें से आपने रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किए हो, उसको अच्छे तरीके से डिस्कशंस बताए हों, फ्यूचर वर्क बताया हो अच्छे तरीके से. अदरवाइज नॉर्मली जो है ये सिंपली एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होता है. रिसर्च नॉर्मली विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसको रिसर्च नहीं कहा जाता. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है कि आप किसी भी पेपर को साइट कैसे करते हैं. साइट से मुराद ये आप किसी पेपर का हवाला दे रहे हैं अपने रिसर्च पेपर में. तो एक तरीका तो ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में नंबरिंग डालते हैं, नंबर 1, और एट द एंड ऑफ योर पेपर रेफरेंसेस का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे आप उस नंबर 1 के अगेंस्ट आप उस पेपर को लिखोगे कि ये पूरा पेपर जो है किस क्या टाइटल है, उसका ऑथर क्या है, और उसका हवाला आप ऊपर दोगे अपने टेक्स्ट में, नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से. दूसरा तरीका होता है कि आप ऑथर का नाम लिखते हो और ईयर लिखते हो. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है. अगर आप टेक्स्ट के बीच में या आखिर में हवाला दे रहे हो, एक जुमला लिखा और उसके बीच में आप हवाला दे रहे हो, तो आप ब्रैकेट के अंदर ऑथर और ईयर लिखते हो, और कभी कभार पेज नंबर भी लिख दिया जाता है. लेकिन अगर आप जुमले के शुरू में लिख रहे हो
तो ऑथर का नाम बाहर आता है, एयर अंदर आता है। और अगर कई ऑथर्स हैं तो आप एट ऑल लिखते हो, ETAL। कई ऑथर्स हैं तो एट ऑल, ऑथर का नाम लिखा, पहले ऑथर का नाम लिखा, एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स, यानी पहले ऑथर का नाम लिख दिया, बाकी सबके नाम नहीं लिखे, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स हैं तो आप फिर क्या करते हो, एट ऑल लिख देते हो। तो ये चीज समझना जरूरी है कि इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे होगी और स्टार्टिंग ऑफ दी सेंटेंस में किस तरीके से साइट किया जाएगा। और ये चीज भी समझना जरूरी है, इफ यू आर कोटिंग एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम सम रिसर्च पेपर, यू आर कोटिंग डिटो, तो आप यू नीड टू राइट इन डबल कोटेशंस, डबल कोटेशंस में लिखना जरूरी है। अगर आप डिटो जो है वही चीज कोट कर रहे हैं। देन रिसर्च पेपर के अंदर आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, लिटरेचर रिव्यू बता दिया। अब मेथड्स का सेक्शन होगा। मेथड्स एक जनरल जो है हेडिंग बताई है मैंने यहाँ पे। अगर आप कंप्यूटर साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी प्रपोज मेथोडोलॉजी, प्रपोज मॉडल, प्रपोज फ्रेमवर्क आएगा। यहाँ पे आप बताओगे कि मेरा फ्रेमवर्क जो है क्या है, कि आप क्या चीज टेस्ट करने चाह रहे हो। आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के डोमेन में नॉर्मली यहाँ पे प्रपोज मेथड या प्रपोज अप्रोच आती है। यहाँ पे आप कोई फ्रेमवर्क डायग्राम बताओगे कि आप जो है क्या चीज करने जा रहे हो। और अगर आप जो है कोई सूडो कोड डालना चाहो, कोई एल्गोरिथम डिस्कस करना चाहो, यानी जो चीज़ आप प्रपोज कर रहे हो उसकी पूरी डिटेल आएगी। फॉर एग्जांपल आप जो है एक्सटेंडेड LSTM या मॉडिफाइड LSTM यूज़ करना चाह रहे हो, तो मॉडिफाइड LSTM के बारे में पूरी तफसील यहाँ पे आप लिखोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके रिसर्च का। रिसर्च पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यही होगा। यहाँ पे आप पूरा अल्गोरिथमिक डिटेल डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना, अपने आइडिया को पूरा आप जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। नॉर्मली जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के अलावा, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो उसमें तो आप सिर्फ ये लिखोगे कि आप क्या हाइपोथेसिस टेस्ट करने जा रहे हो, वहाँ पे शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस डोमेन में आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सेक्शन को जो है तफसील से लिखना। क्या मेथोडोलॉजी आप अप्लाई करोगे, आप जो है क्या आपके फ्रेमवर्क के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, वो आपस में किस तरीके से लिंक्ड हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उनके एल्गोरिथम की डिटेल, उनका सूडो कोड, कोई फ्लो डायग्राम बतानी है, इक्वेशंस बतानी है, तो ये तमाम चीज़ें मेथड्स के अंदर आएंगी। देन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड रिजल्ट्स। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल भी बताना ज़रूरी है, वो आप मेथड्स में भी बता सकते हो, रिजल्ट्स के साथ भी बता सकते हो। यहाँ पर आप बताओगे कि आपने इस आइडिया को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जब तक कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे यू कैन नॉट टेस्ट इट। तो इम्प्लीमेंटेशन में आप बताओगे कि मैंने एक सिमुलेटर पे इसको चला के देखा, या मैंने एक टेस्ट बेड बनाया ये अपनी लैब के अंदर, या मैंने रियल वर्ल्ड पे जाके इसको चला के देखा। तो जो भी है आपका, आपने कोई सिमुलेटर यूज़ किया या कोई कहीं पे चला के देखा, कहाँ पे चला के देखा, उसमें कितनी नोड्स थी, एडहॉक नेटवर्क बनाया तो कितनी नोड्स थी, उनके बीच में जो कनेक्शंस बने उनकी बैंडविड्थ कितनी थी, ये तमाम डिटेल्स आप बताओगे। एंड देन रिजल्ट रिपोर्ट करोगे, रिजल्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो बताया था कि मैं ये चीज़ टेस्ट करने जा रहा हूँ, कि फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेमवर्क की लर्निंग अच्छी होगी, मैं मॉडिफाइड LSTM जब इस्तेमाल करूँगा तो एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। तो क्या आपने एक्यूरेसी को रिजल्ट में रिपोर्ट किया है? आपने वहाँ पे बात की कि एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपने एक्यूरेसी को चेक किया है? जो बात आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर की है, मैं ये चीज़ चेक करने जा रहा हूँ,
whether you are getting that result or not, that is a separate question. लेकिन have you tested it or not? क्या आपने उसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद क्या वही रिजल्ट मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? Normally you show your results in the form of tables, टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में आप रिपोर्ट करते हो, और उसके बाद जो है आप नैरेटिव भी लिखते हो, नरेशन भी होनी चाहिए जिसमें आप बताओगे कि आपको क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या मिली, और क्या वजह थी कि आपको ये रिजल्ट मिले। यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हो, मीन वैल्यू क्या मिली आपको एक्यूरेसी की, प्रिसिशन क्या मिली, रिकॉल क्या मिली, मुख्तलिफ तरीके से आप एनालाइज करोगे, और ये सारी चीज़ें वही होनी चाहिए जो आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रिपोर्ट किया है। तो एब्स्ट्रैक्ट और रिजल्ट जो है टोटली मैच करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद अगर आपको कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन मिल रही है जो कि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, उसको भी रिपोर्ट करें। आपका हाइपोथेसिस सही साबित हुआ या नहीं हुआ, न्यू डिस्कवरी कोई हो रही है, कोई नया वेरिएबल आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कोई नया वेरिएबल आपको नजर आता है। जैसे आइंस्टाइन है, उसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का एक नया वेरिएबल मिला था जब वो एक इक्वेशन पे काम कर रहा था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, बाद में इट वाज डिस्कवर्ड बाय सम अदर साइंटिस्ट। तो ये आपने जो भी ऑब्जर्वेशन मिल ली है, ऐसी चीज मिल ली है जो आप एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहे हो, आप उसको भी रिपोर्ट करो कि मुझे ये फाइंडिंग्स मिली हैं, और उसके पॉसिबल रीजन ये हो सकते हैं। आप कंप्लीटली जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उस फाइंडिंग की वजह को, मे बी सम अदर रिसर्चर्स would be able to identify or explain this phenomena. देन आपकी रिसर्च के अंदर डिस्कशन का सेक्शन अलग से भी हो सकता है, जिसमें आप जो है रिजल्ट्स को डिस्कस करो। कंक्लूजन के अंदर भी आप रिजल्ट को डिस्कस कर सकते हो। आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलिएंट फाइंडिंग्स होंगी, यू विल रिपोर्ट दैट, और ये किस तरीके से आपका काम जो है बाकी कामों से रिलेट करता है। आप कंक्लूड करोगे इस पेपर में आपने जो है क्या चीज़ फाइंड की, क्या चीज़ आपने डिस्कस की, और ये किस तरीके से बाकी कामों से रिलेट करता है, इसकी अहमियत क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के फ्यूचर वर्क क्या है। आपके स्टडी में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्क नहीं करेगा, ये आप रिपोर्ट करोगे, और फ्यूचर वर्क भी आप रिपोर्ट करोगे कि किस तरीके से आपके काम को एक्सटेंड किया जा सकता है। देन रेफरेंसेस, वो तमाम हवाले, ऑल दोज citation in your paper, the details will be provided in the end of the रिसर्च पेपर। जो जो आपने रिसर्च पेपर्स का हवाला दिया है, 1 2 3 आपने लिखा हो, या ऑथर और ईयर के थ्रू आपने साइट किया हो, तो जो पेपर्स आपने अपने बॉडी के अंदर डाले हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है आपने आखिर में लिखना है, और लिखने का भी एक तरीका कार है। रेफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पेपर की अहमियत का अंदाजा होता है। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे पेपर्स नहीं पढ़े हैं, अच्छे पेपर्स को साइट नहीं करना, तो आपका काम भी इतना अच्छा नहीं होगा। जब आप अच्छे पेपर पढ़ेंगे तो ट्राई टू स्टडी रीसेंट पेपर्स। पहली बात तो ये कि रूल ऑफ थंब क्या है, रीसेंट पेपर्स पढ़े। तो इन 2020 यू आर डूइंग योर रिसर्च, so you should study papers in the year 2020, 2019, 2018. So most of your references from last 2 to 3 years, and then बाकी references 5 साल पुराने हो सकते हैं, but try to cover recent papers. सेकंड रूल क्या है, पहला रूल तो ये हो गया, पहले recent papers पढ़े। दूसरे, try to study papers of good publishers. गुड पब्लिशर्स कंप्यूटर साइंस की डोमेन में ACM हो सकता है, IEEE हो सकता है, स्प्रिंगर हो सकता है, इंडर साइंस हो सकता है,
एल्सफेयर हो सकता है, टेलर एंड फ्रांसिस हो सकता है, एमराल्ड हो सकता है, एमराल्ड के अलावा इंडर साइंस हो सकता है। तो ट्राई टू स्टडी पेपर्स फ्रॉम गुड पब्लिशर्स, अच्छे पब्लिशर्स के पेपर पढ़े। और तीसरी बात ये कि ट्राई टू स्टडी जर्नल पेपर्स को ज़्यादा फोकस करें। तो अगर आपने कोई ऐसे पेपर्स पढ़े, कुछ प्रीडेटरी पब्लिशर्स होते हैं, तो उनके पेपर्स, उनके टाइटल से ही अंदाजा हो जाता है जर्नल के कि ये प्रीडेटरी पब्लिशर है या जर्नल प्रीडेटरी है, जो कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग दी पीयर रिव्यू, और आपका पेपर जो है वट एवर यू आर सेंडिंग दे आर जस्ट पब्लिशिंग बाय चार्जिंग सम फी, कुछ पैसे लेके आपका पेपर पब्लिश कर देते हैं। तो प्रीडेटरी पब्लिशर्स को अवॉइड करें। उन ना तो ऐसे पेपर्स, ऐसे जर्नल में आप अपनी पब्लिकेशंस करें, ना उनके पेपर्स को आप साइट करें। तो आपके पेपर की सिग्निफिकेंस, उसकी वर्थ का अंदाज़ा इसी तरह होता है कि आपने कितने पेपर्स को साइट किया है, कितने पेपर्स को आपने जो रेफर किया है, और उनकी क्वालिटी क्या है, और क्या वो रीसेंट पेपर्स हैं या नहीं है। यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि किसी भी पेपर को साइट कैसे किया जाता है, और बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस में किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। नॉर्मली जो है ऑथर का लास्ट नेम लिखा जाता है, कॉमा डाल के फर्स्ट नेम एब्रीविएट किया जाता है। जैसे नुमान इस्लाम है तो उसको लिखा जाएगा इस्लाम कॉमा एन डॉट, उसके बाद सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर। फिर कहीं किसी फॉर्मेट में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। बाज़ पब्लिशर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईयर पहले लिखो, बाज़ कहते हैं ईयर को आखिर में लिखो। तो आपने ईयर लिखा है यहाँ पे डॉट लगा के। बाज़ कहते हैं आर्टिकल को, जो टाइटल है, आर्टिकल जो टाइटल है उसको कोटेशन में लिखें, बाज़ कहते हैं कोटेशन में ना लिखें। बाज़ कहते हैं कि जर्नल का नाम इटैलिक में लिखें, बाज़ कहते हैं इटैलिक में ना लिखें। वॉल्यूम इटैलिक में लिखें, ना लिखें। तो जर्नल का वॉल्यूम कौन सा है, कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुआ, और उसका इशू नंबर क्या है, और आखिर में पेज नंबर। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने जो है जब भी आप पेपर पब्लिश कराएं तो रेफरेंसेस पे जो है ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जाए। तो आपकी सीरियसनेस का अंदाज़ा भी इससे होता है कि ऑथर जो है कितना सीरियस है। अगर वो इन इंफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं करता, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, किसी रेफरेंस की इंफॉर्मेशन को स्किप कर देता है, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट सीरियस इन हिज वर्क। तो आर्टिकल यानी जर्नल का पेपर जो है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बुक चैप्टर को इसी तरीके से पब्लिशर बताया जाता है, कौन सी बुक में पब्लिश हुआ है। इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस को साइट कर रहे हैं आप, तो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, कौन से मुल्क में हुई, कौन सी तारीख को हुई, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। वेबसाइट को रेफरेंस करने का तरीका ये होता है कि आप ये बताते हैं वेबसाइट आपने, अगर कोई ऑथर है उस पेज का, वेबसाइट के लिंक का कोई ऑथर है, किसी ने लिखा है वो पेज, कोई ब्लॉग लिखा है, उसका नाम आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, उसका यूआरएल आ जाएगा, और उसके अलावा आप ये बताओगे कि इस नॉर्मली वेबसाइट का कोई ईयर या डेट नहीं होती, तो आप वो डेट दोगे जिस डेट पे आपने उस वेबसाइट को ओपन करके देखा था, जब आपने पढ़ा था, उसको एक्सेस किया था, लास्ट टाइम आपने कब इसको एक्सेस किया। यू विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर डेट। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को अवॉइड करें अपने आर्टिकल के अंदर। ट्राई टू राइट एवरीथिंग बाय योर ओन, खुद से हर चीज लिखने की कोशिश करें। अगर आपने कहीं से डिट्टो कॉपी किया है तो उसको साइट करें और कोटेशन के अंदर लिखें, एक्नॉलेज करें। अगर आपने कहीं से कोई चीज लेके रिफ्रेज भी कर दी है उसको भी साइट करें। कोशिश करें कि हर चीज खुद से लिखने की कोशिश करें।
डोंट यूज कंट्रोल सी कंट्रोल वी। रिसर्च करते हुए कंट्रोल सी कंट्रोल वी भूल जाए, कॉपी पेस्ट करना भूल जाए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल ना करें रिसर्च करते हुए, ठीक है। तो प्लेजरिज्म ये होती है कि आपने, एक तो प्लेजरिज्म ये है कि आपने किसी का टेक्स्ट, आपने कुछ पोर्शन कॉपी कर लिया और अपने पेपर में इंक्लूड कर लिया, भले वो आपका अपना टेक्स्ट हो, अपने किसी दूसरे पेपर से आपने कॉपी करके एक और पेपर में लिख रहे हैं उसको, फिर भी साइट करें, ये भी प्लेजरिज्म में आती है, इसको सेल्फ प्लेजरिज्म कहा जाता है। तो प्लेजरिज्म को अवॉइड किया जाए, क्योंकि प्लेजरिज्म को इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप किसी और के आइडिया को कॉपी कर रहे हैं, किसी और के काम को कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर रहे हैं, तो दैट इज चीटिंग। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो टू अवॉइड प्लेजरिज्म, हर चीज को डॉक्यूमेंट करें, जो भी चीज आपने कहीं से पिक की है उसको डॉक्यूमेंट करें। एक तो चीज ये है कि आप किसी का टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं, और एक चीज ये किसी का आइडिया कॉपी करके अपने अल्फाज में पेश करना, ये भी चीटिंग है। आइडिया किसी और का आप अपने अल्फाज में पेश करके क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, डेट इज ऑल्सो चीटिंग। तो हर चीज को साइड करें, उसका ड्यू क्रेडिट उसको दें। कहीं से डिटो कॉपी कर रहे हैं तो कोट करें। कहीं से आप जो है कोई चीज उठाई है आपने, जरूरत होती है बाज़ औक़ात हवाला देने की किसी भी काम का, कि कहीं से आपको कोई काम की चीज मिली किसी दूसरे पेपर में, कि फलाना पेपर में ये बात की गई है, आप उसका हवाला दे रहे हैं आप उसके काम का, तो पैराफ्रेज करके रीफ्रेज करके आप लिखें कि हाँ फलाना पेपर में ये बात की गई है। ऐसा नहीं कि उस पेपर से एज इट इज कॉपी करके आप अपने पेपर में लिख लें, बल्कि अपने अल्फाज में बयान करें कि उस पेपर में क्या बात की गई है, और रेफरेंस भी दें। और जब भी डाउट हो आपको, जरूर साइट करें, रेफरेंस जरूर दें। ठीक है। तो सेल्फ प्लेजरिज्म जो है ये भी इलीगल है। सेल्फ प्लेजरिज्म से मुराद ये है कि अपने ही काम का हवाला ना दिया जाए, अपने ही काम को कॉपी कर लिया जाए। प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, टर्निटिन है एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है टर्निटिन। तो वॉट एवर यू विल राइट इन दिस कोर्स, जो भी पेपर आप लिखेंगे मैं उसको टर्निटिन पे जरूर चेक करूंगा। और जो अलाउेबल लिमिट है, ऑब्वियसली अगर आप कहीं से कॉपी ना भी करें, कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं वो तो मैच कर ही जाएंगे, तो इस वजह से एक मार्जिन दिया जाता है, 19% का मार्जिन दिया जाता है। 20% जो है वो फिर आपका पेपर एक्सेप्टेबल नहीं होता, 19% इज एक्सेप्टेबल, 19%। बट इन दिस कोर्स आई विल नॉट अलाउ मोर देन 9%। 9% तक मैं अलाउ करूंगा, 10% पे आई विल गिव यू स्ट्रेट 0 मार्क्स। तो इस कोर्स में आपने 9% प्लेजरिज्म अलाउड है। आप जो भी पेपर लिखेंगे, अगर खुद से लिखेंगे तो आई एम श्योर के 5% से ज्यादा नहीं आएगी प्लेजरिज्म। पनिशमेंट क्या होती है प्लेजरिज्म की? डिमोशन ऑफ क्लास, स्टूडेंट को डिमोट कर दिया जाए, किसी कोर्स में फेल कर दिया जाए, या अगर उसका थीसिस ही जो है वो प्लेजराइज्ड है तो उसकी डिग्री ही कैंसिल कर दी जाए। यानी इवन आफ्टर ही गॉट मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री, वो डिग्री भी कैंसिल हो सकती है चीटिंग करने पे। प्रोफेशनल अगर कोई बंदा है, स्टूडेंट की बात की है तो मैंने, प्रोफेशनल में डिमोशन, उसको डिमोट कर दिया जाए, प्रोफेसर से दोबारा एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया जाए, या एकेडमिक से बैन कर दिया जाए, ये भी हो सकता है, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। तो इस वजह से बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत है। वेन एवर यू राइट पेपर, ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन इंस्टेड ऑफ प्लेजराइजिंग। यहाँ तक के बाद आई होप कि क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर। आई होप यू आर लिसनिंग मी प्रॉपरली। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन।
research matrix. Now a very important question कि आप किसी भी रिसर्च को किस तरीके से evaluate करेंगे कि whether it is a good research or a bad research, whether a researcher is a good researcher or not a good researcher. तो एक important चीज होती है citations, कि कोई बंदा जो है या कोई रिसर्च पेपर को कितनी बार साइट किया गया, उसके पेपर का कितनी बार हवाला दिया गया है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू look for the citation of a paper whenever selecting a paper. ये जरूर देखें कि ये कितनी बार साइट किया गया. तो अगर कोई पेपर जो 500 दफा साइट किया गया, इट मींस इट इज अ गुड पेपर. ठीक है, साइटेशन मैं बता चुका हूं कि आप किसी भी पेपर का हवाला देना, उसकी कोटेशन या उसके किसी काम को हवाला देना. इसी तरीके से एक बंदा है, उसके अपनी कितनी साइटेशन है, उसके काम को, उसके टोटल काम को कितनी दफा साइट किया गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. राइट, तो अगर एक बंदा है उसके काम को 1000 दफा साइट किया गया, दैट मीन्स ही इज अ गुड रिसर्चर. इम्पैक्ट फैक्टर ये जर्नल का होता है. ये भी आप जरूर देखें कि किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है. ये भी देखना जरूरी है कि इम्पैक्ट फैक्टर JCR का हो. कुछ जर्नल होते हैं जो कि फेक इम्पैक्ट फैक्टर खुद से फॉर्मूले से कैलकुलेट करके इम्पैक्ट फैक्टर रिपोर्ट कर दिया. इम्पैक्ट फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, ये बात सही है, लेकिन इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अगर JCR, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, JCR ने फॉर्मूले से इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट किया है, दैट मीन्स के ये जर्नल जो है उसका इम्पैक्ट फैक्टर वैलिड है, सही है. लेकिन कुछ जर्नल जो है वो खुद से भी, उनको JCR वाले कंसीडर नहीं करते उस जर्नल को. JCR में उन जर्नल्स को कंसीडर ही नहीं किया गया इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए. तो उस जर्नल की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. सिर्फ वो जर्नल जो कि JCR में, JCR कहा जाता है जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, या एक और टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है SCI, साइंस साइटेशन इंडेक्स, या SCIE, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, या एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है थॉमसन रियूटर की रैंकिंग. थॉमसन रियूटर्स ने अगर इम्पैक्ट फैक्टर बताया है, अगर ISI का इम्पैक्ट फैक्टर हो, या थॉमसन रियूटर का इम्पैक्ट फैक्टर हो, या SCI इम्पैक्ट फैक्टर हो, या SCIE इम्पैक्ट फैक्टर हो, या JCR इम्पैक्ट फैक्टर हो, इन सब का एक ही मतलब है. ठीक है, वैलिड वाला इम्पैक्ट फैक्टर. ये सब एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं. JCR कह लें, SCIE कह लें, SCI कह लें, ISI इम्पैक्ट फैक्टर कह लें, थॉमसन रियूटर कह लें, या क्लाइव वेरिएट कह लें. अगर एक जर्नल जो है इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड जर्नल. तो अगर आप अपने पेपर जब भी सिलेक्ट करें पढ़ने के लिए, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स को सिलेक्ट करें. एक और चीज H इंडेक्स. H इंडेक्स भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है. H इंडेक्स से मतलब है कि एक वैल्यू है जो रिसर्च की अहमियत को बताती है. तो अगर किसी बंदे का H इंडेक्स 7 है, 8 है, किसी रिसर्चर का या जर्नल का, तो अगर किसी ऑथर का H इंडेक्स 7 है तो इट इज अ वेरी गुड वैल्यू. 7, 8, इट इज अ वेरी गुड वैल्यू. इसका मतलब है, H इंडेक्स का मतलब है, अगर H इंडेक्स 10 है तो 10 का मतलब है इसके 10 पेपर को 10 दफा साइट किया गया है. यानी इसके 50 पेपर है, लेकिन 10 पेपर ऐसे हैं जिनको कम से कम 10 दफा साइट किया गया है. या H इंडेक्स 8 होने का मतलब है इसके 8 पेपर्स को, कोई से 8 पेपर्स ऐसे हैं जिसके उनमें से 8 में से हर पेपर को 8 दफा जरूर साइट किया गया है, 8 या 8 से ज्यादा दफा. तो अगर किसी बंदे का इंडेक्स H इंडेक्स 15 है तो इसका मतलब है उसके
टोटल पेपर्स में से कोई से 15 पेपर्स ऐसे हैं जिनको कम से कम 15 दफा जरूर हवाला दिया गया है। तो जैसे जैसे एच इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है मुश्किल हो जाता है एच इंडेक्स मेंटेन करना। ठीक है, यानी 10 तक कोई पहुंच गया, 11 पे पहुंचने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 12 पे पहुंचने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। I10 इंडेक्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी बंदे के कितने पेपर्स ऐसे हैं जिनमें 10 दफा साइट किया गया, उसको कितने पेपर्स ऐसे हैं जिसको 10 दफा साइट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक डेमो देना चाहूंगा। गूगल स्कॉलर पे जाएं आप, scholar.google.com पे। यहाँ पे किसी भी बंदे का नाम लिखें, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट माई नेम। तो गूगल स्कॉलर पे जब आप सर्च करेंगे तो उस बंदे का अगर प्रोफाइल बना हुआ होगा तो वो ओपन होके सामने आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर इस ऑथर की राइट साइड के ऊपर पूरी डिटेल्स आ रही है। इसके साइटेशंस कितनी है? 861। इसका एच इंडेक्स कितना है? 9। इसका I10 इंडेक्स कितना है? 9। यानी इसके 9 पेपर ऐसे हैं जिसको 10 दफा साइट किया गया है कम से कम। लेफ्ट साइड पे इस बंदे के पेपर्स आ रहे हैं और साथ साथ ईयर आ रहा है और बताया गया है कि इस पेपर को कितनी दफा साइट किया गया है। ठीक है, तो गूगल स्कॉलर से भी आप जो है किसी बंदे का एच इंडेक्स, उसकी कितनी साइटेशंस हैं, ये तमाम चीजें मालूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बैक गया हूँ अभी, ये तो मेरा प्रोफाइल था जो मैंने आपको दिखाया। वैसे अगर नाम सर्च करना चाहिए, यहाँ पे पेपर्स आ रहे हैं मेरे, साथ साथ हर पेपर के बारे में, ये पेपर जो है कितनी दफा साइट किया गया है, ये पेपर कितनी दफा साइट किया गया है, ये पेपर कितनी दफा साइट किया गया है, और यहाँ पे पीडीएफ भी आ रही है, इस पेपर को डाउनलोड भी किया जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, तो व्हेन एवर यू टॉक अबाउट रिसर्च, तो रिसर्च में इन पैरामीटर्स को कंसीडर करना जरूरी है कि उसकी कितनी साइटेशंस हैं, उसका एच इंडेक्स कितना है, उसका I10 इंडेक्स कितना है। तो ये मैंने थोड़ी सी बात की रिसर्च मैट्रिक्स के ऊपर। पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू क्या होता है? whenever you want to publish a paper, it goes through a peer review process। जब भी आप पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो आपका पेपर जो है peer review से गुजरना जरूरी है, जिसको कहते हैं रेफरीड पब्लिकेशन। यानी आपका पेपर जो है आपके ही एरिया के किसी दूसरे बंदे के पास जाता है और वो आपके पेपर को एक दफा रिव्यू करता है, देखता है और आपको कमेंट्स देता है कि वेदर ये पेपर जो है इसी फॉर्म में एक्सेप्टेबल है पब्लिकेशन के लिए, या इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, या इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर इतनी वर्थफुल नहीं है। तो आपका काम जो है, कोई भी साइंटिफिक काम हो, एकेडमिक काम हो या प्रोफेशनल वर्क हो, आपके दूसरे बंदे आपकी फील्ड के, ठीक है, दे आर नॉट योर टीचर्स, या वो आपके टीचर नहीं है, या कोई बहुत ही, आप ये नहीं कहेंगे कि जो है आप बहुत ही एक्सपर्ट हो, बट आपकी फील्ड का ही एक बंदा हो। पीयर इसी वजह से कह रहे हैं कि आपकी हम असर बंदा, आपके डोमेन का ही कोई बंदा रिव्यू कर रहा है, जो कि आपको सजेशंस देगा इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अब पीयर रिव्यू ब्लाइंड भी हो सकता है। ब्लाइंड का मतलब ये है कि जो बंदा रिव्यू कर रहा है उसको नहीं पता कि वो किस बंदे का पेपर रिव्यू कर रहा है, यानी ऑथर का नाम भी छुपा दिया जाता है कि कौन सा बंदा रिव्यू कर रहा है। अब कुछ प्री डेटर जर्नल्स हैं जो कि पीयर रिव्यू करवाते ही नहीं है, यानी किसी को भेजते ही नहीं है रिव्यू के लिए, रिव्यू होता ही नहीं है, बल्कि आप उनको जो भी भेज दें, वो जो भी पेपर भेजे, इट एक्सेप्ट्स द पेपर एज इट इज विदाउट लेटिंग द पेपर गो थ्रू अ प्रॉपर रिव्यू प्रोसेस। रिव्यू प्रोसेस से नहीं गुजरे पेपर तो हम कहेंगे कि ये प्रीडेटर जर्नल है, प्रीडेटर है, फेक जर्नल है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कुछ
जर्नल की कैटेगरीज, JCR मैंने बता दिया आपको, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, जो कि आपके पेपर को एक इम्पैक्ट फैक्टर असाइन करता है, आपके जर्नल को एक इम्पैक्ट फैक्टर असाइन करता है। JCR कह लें, SCIE कह लें, ISI कह लें, SCIE कह लें, ISI इम्पैक्ट फैक्टर, SCIE इम्पैक्ट फैक्टर, SCI इम्पैक्ट फैक्टर, क्लाइव वेरिएट इम्पैक्ट फैक्टर। तो JCR में हो कोई जर्नल तो वहां पर आप जरूर भेजें पेपर पब्लिश करने के लिए। ऐसा जर्नल सेलेक्ट करें अपने पेपर को पब्लिश कराने के लिए जो कि JCR में लिस्टेड हो। JCR में लिस्टेड हो तो इट इज अ वेरी गुड जर्नल। अगर कोई जर्नल if it is listed in JCR it means it is a very good journal, you must try to publish in that journal। इसके अलावा HEC ने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है जर्नल्स की, W, X, Y एंड Z। W जो है बहुत हाईएस्ट कैटेगरी है, फिर X है, फिर Y है और फिर Z है। तो इन जर्नल्स में भी आप भेज सकते हैं पब्लिश करने के लिए, जो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल होंगे। इसके अलावा कुछ इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, जैसे ESCI है, इमर्जिंग साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो ये वेबसाइट है mjl.clivevariate.com। यहाँ पे जाके आप ज़रूर सर्च करें। आप अगर कोई जर्नल ESCI में इंडेक्स है दैट मीन्स इट इज़ ओके टू पब्लिश। या स्कूपस में इंडेक्स हो, जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स आती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो स्कूपस को देखते हैं। अगर स्कूपस में कोई पेपर आ रहा है तो आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इम्प्रूव होती है। स्कूपस में तो बहुत सारे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंडीशन लगाती हैं कि आप डिग्री हासिल करने के लिए स्कूपस में पब्लिश करें। तो JCR में अगर कोई पेपर आ रहा है तो ज़रूर पब्लिश कराएं। HEC रिकग्नाइज जर्नल है, पब्लिश करा सकते हैं। ESCI में इंडेक्स है या स्कूपस में इंडेक्स है, scopus.com पे जाके सर्च कर ले। या अगर कोई वेल नोन पब्लिशर है जैसे स्प्रिंगर है, एल्सवेयर है, इंडर साइंस है, IEEE है, ACM है, टेलर एंड फ्रांसिस है, बेंथम है या एमराल्ड है, तो यहाँ पर आप यू कैन ट्राई टू पब्लिश। लेकिन अब एक कैटेगरी है प्रीडेटरी जर्नल्स की, फेक जर्नल्स की, यहाँ पे कभी पेपर ना भेजें पब्लिश करने के लिए। तो बील्स के नाम से एक लाइब्रेरियन है, बील, उसने जो है एक लिस्ट निकाली है, रिसर्च के बाद उसने लिस्ट बनाई है फेक जर्नल्स की। उसने पूरी लिस्ट दे दी है कि ये जर्नल्स फेक है, इसमें कभी पब्लिश ना करा जाए। पब्लिशर की भी लिस्ट दी है उसने, ये पब्लिशर्स हैं, इनके पास पब्लिश ना किया जाए। इन पब्लिशर्स के जो जर्नल्स हैं ये फेक हैं या डाउटफुल है, तो नेवर ट्राई टू पब्लिश इन दोज जर्नल्स। एक कैटेगरी है ओपन एक्सेस जर्नल्स की। ये एक नया मॉडल आया है गुज़िश्ता 10 सालों में, जिसके अंदर एक नया तरीकाकार अडॉप्ट किया गया पब्लिशिंग के लिए। पहले ये होता था कि जब आप पेपर पब्लिश करने जाते थे तो आपको पब्लिश करते हुए, जर्नल पब्लिश करते हुए आपको कोई फीस नहीं देनी पब्लिश करने के लिए। और जब कोई बंदा पढ़ना चाहेगा उस पेपर को, वो डाउनलोड करेगा, तो डाउनलोड जो बंदा कर रहा है उसको फीस देनी पड़ेगी। अब ओपन एक्सेस ने एक नया मॉडल निकाला है, इसमें कुछ इस तरीके से होता है, जो बंदा पब्लिश कर रहा है फीस वो देगा, और फिर ये पब्लिश होने के बाद ये फ्रीली अवेलेबल होगा हर किसी को। तो पब्लिशिंग के चार्जेस हैं, तो पब्लिश करने के लिए आप पैसे देके जल्द पब्लिश करा सकते हैं पेपर। फायदा ये है ओपन एक्सेस का, नॉर्मली जो है अगर आप पब्लिश करने जाएं जर्नल में कोई पेपर, तो अच्छा जर्नल है तो 1 साल 2 साल लग जाता है। ओपन एक्सेस ये करता है कि आपकी रिव्यू का जो टाइम है वो 1 महीने में रिव्यू करके आपको बता देता है आपका पेपर पब्लिश होगा या नहीं होगा। दूसरा फायदा ये होता है इसका
कि आपका पेपर जो है ओपनली अवेलेबल है। जब ओपनली अवेलेबल है तो इट इज एक्सेसिबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल है। तो आपकी साइटेशंस, आपके पेपर को हवाला भी ज़्यादा लोग देंगे जब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो। लेकिन ओपन एक्सेस पे क्रिटिसिज्म भी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ओपन एक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है पैसे देके पब्लिश कराने के लिए। कुछ लोगों का काम इतना वर्थी नहीं होता, इतना अच्छा काम नहीं है, लेकिन वो फीस देते हैं और उनका पेपर पब्लिश हो जाता है। बहरहाल क्रिटिसिज्म है अपनी जगह, लेकिन इसका फायदा ये है कि आपका पीयर रिव्यू का टाइम बच जाता है। हाउ टू स्टार्ट योर रिसर्च, scholar.google.com है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। IEEE एक्सप्लोर पे, साइंस डायरेक्ट पे, ये वेबसाइट्स है डिफरेंट पब्लिशर्स की, यहाँ पर आप पेपर्स सर्च कर सकते हैं। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ गूगल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिग डेटा, तो बिग डेटा एनालिटिक्स पे आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। फ्रॉम द लेफ्ट आप ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिछले 5 साल के पेपर्स या पिछले 2 साल के पेपर्स। यहाँ से आपको पेपर्स डाउनलोड के लिए भी मिल जाएंगे। नॉर्मली ये ओपन एक्सेस पे मौजूद है, ये पेपर साइंस डायरेक्ट पे, तो ये पूरा पेपर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे साइटेशंस भी आ रही हैं कि कौन सा पेपर जो है कितनी दफ़ा साइट किया गया है। तो यहाँ से आप जो है अपने एरिया के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल फ्री, PDF मौजूद है, आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पेपर नहीं मिलता तो यू कैन ऑलवेज गो टू SciHub। आप SciHub पे जा सकते हैं और वहाँ से, तो मैंने बता दिया, आप जो है डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन डेट्स के दरमियान के पेपर्स चाहिए आपको। IEEE एक्सप्लोर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। sciencedirect.com पे ये वेल नोन पब्लिशर्स हैं। SciHub पे आपको कोई पेपर नहीं मिलता, scihub.com पे जाए और यहाँ पर आप पेपर का URL दे दें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो SciHub पे आपको ऑलमोस्ट 99% मैं कहूँगा, you will find 99% of the papers on SciHub. So now in today's world there is no excuse कि we don't have the resources to download the paper। आपके पास SciHub मौजूद है, हर तरह का पेपर इजीली अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। नाउ कुछ important points before winding up today's lecture. There are certain mistakes made by researchers जो कि बिगिनर्स होते हैं, रिसर्च स्टार्ट करी होती है जिन्होंने। पब्लिशिंग इन अ प्रीडेटरी जर्नल, नॉर्मली मैंने देखा है लोग गलती ये करते हैं, प्रीडेटरी जर्नल में पब्लिश करा देते हैं। ना तो जर्नल की कोई वैल्यू होती है, उससे आपका नाम खराब होता है। बजाय इसके कि आपका नाम एक अच्छा नाम बने रिसर्चर की हैसियत से, आप प्रीडेटरी जर्नल में करा रहे हैं, ना उसकी कोई इंडेक्सिंग है, ना उसकी कोई रिकग्निशन है, ना उसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर है, ना कोई पब्लिशर इतना वेल नोन है। तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए जनरल सिलेक्शन के, उसमें कोशिश करें प्रीडेटरी में ना करें। दूसरी गलती ये करते हैं, लिटरेचर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती जब पेपर लिख रहे होते हैं, या तो वो सिर्फ लिटरेचर रिव्यू को समझ रहे होते हैं कि एक पेपर हो गया, या क्वालिटी ऑफ दी पेपर बहुत बैड होता है, पुराना लिटरेचर होता है, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, या जर्नल्स अच्छे नहीं होते जहाँ से उन्होंने पढ़ा है। कुछ प्रीडेटरी पब्लिशर्स को जो है वो, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं। कोशिश करें अच्छा लिटरेचर पढ़े। अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम जो आप उठाएंगे वो भी अच्छी होगी, जो काम करेंगे वो भी अच्छा होगा। एक और गलती ये होती है कि हाइपोथेसिस क्लियर नहीं होता, प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता कि वो करने क्या जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट में आपने मेंशन किया कि मैं ये काम करूंगा, रिजल्ट में गए तो कुछ और चीज आपको मिल रही होती है।
एब्स्ट्रैक्ट में कोई बात की गई है, पेपर में कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आएंगी, एक जगह कोई बात की गई है, दूसरी जगह पर उसकी अपोजिट बात की गई है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बाज़ औक़ात सिर्फ रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने के बाद आपने कहा कि ये एक पेपर हो गया, हालांकि ये पेपर नहीं है, एक लिटरेचर रिव्यू है। इंग्लिश की क्वालिटी, लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि बड़ी वोकैब्स यूज़ करें, जिसमें गलती ये होती है जो बिगनर्स होते हैं वो ऐसी वोकैब यूज़ कर रहे होते हैं, गलत वोकैब, कि ये जुमला जो है उसके अंदर ये वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है, गलत इस्तेमाल करते हैं। जब वो वोकैब इस्तेमाल करते हैं, वोकैब का उनको पता नहीं होता। सिनोनियम्स तो मिल जाते हैं वर्ड के ऊपर, आपने शिफ्ट F7 प्रेस किया, यू विल गेट दी सिनोनियम, लेकिन उस सिनोनियम को यहाँ पर सही इस्तेमाल करा है या नहीं करा उसका नहीं पता होता उनको। तो ट्राई टू राइट एज सिंपल एज पॉसिबल, सिंपल इंग्लिश लिखें जो कि सबकी समझ में आ सके। अब मैं एक और पॉइंट जो डिस्कस करना चाहूंगा कि जब आप, पहले तो ये होता था कि लिटरेचर रिव्यू या सिस्टमैटिक सर्वे जो है दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल इन दी रिसर्च कम्युनिटी, लेकिन ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स अब सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को भी जो है पब्लिकेशन के लिए आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इट हैज़ बिकम ईजियर। लेकिन उसका एक तरीका कार है कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू करना चाह रहे हैं, कोई उसको एक सर्वे पेपर में कन्वर्ट करना चाह रहा है, सर्वे पेपर जो है नॉर्मली इट इज नॉट कंसिडर्ड अ रिसर्च वर्क, इट इज नॉट एन इनोवेशन, बट इट इज एक्सेप्टेबल दीज डेज, इट हैज बिकम ईजियर टू पब्लिश। अब ये कंसिडर कर लिया जाता है रिसर्च कम्युनिटी में, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है थोड़ा सा क्वांटिफाई करना पड़ता है चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे आपको वो तरीक़ाकार बताता हूँ, आप क्वांटिफाई करें चीज़ों को। आप मिसाल के तौर पर ये बताएं कि हमने जो है 1000 पेपर्स पढ़े, क्वांटिफाई करके आप बताएंगे, उसको एक रिसर्च में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। आप बोलेंगे हमने 1000 पेपर पढ़े, उसमें से 50% पेपर 2020 के थे, 30% पेपर्स जो है 2019 के थे, 20% पेपर्स 2018 या उससे पहले के थे। हमारे डेटा सोर्सेज क्या थे, हमने कहाँ से पेपर उठाए, हमने IEEE को देखा, हमने ACM को देखा, हमने स्प्रिंगर को देखा, हमने क्या सर्च किया, कीवर्ड हमने सर्च किया डेटा एनालिटिक्स, एक कीवर्ड ये था, एक कीवर्ड था बिग डेटा, हमने किया बिग डेटा चैलेंजेस के नाम से। तो जो जो कीवर्ड्स थे जिससे आपने सर्चेस की, फिर आप बताओगे हमने क्वालिटी असेसमेंट कैसे की, हमने वो पेपर सेलेक्ट किए, इंक्लूजन का क्राइटेरिया हमारा ये था वो पेपर जो कि जर्नल में पब्लिश हुआ, कॉन्फ्रेंस के पेपर को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, वो पेपर जो कि बिग डेटा के अलावा है हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। फिर आपने जो अपने सोर्सेज थे उनके बारे में टेबल बना दिया, परसेंटेजेस को आपने पाई चार्ट बार डायग्राम की फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया। फिर आपने जो है एक टेक्सोनॉमी भी बनानी होगी, बिग डेटा पे जो काम हो रहा है वो इन कैटेगरीज में काम हो रहा है, फिर उन कैटेगरीज में फर्दर सब कैटेगरीज में क्या काम हो रहा है, फिर हर कैटेगरी में क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना, रिसर्च में क्या फ्यूचर डायरेक्शंस हैं वो आइडेंटिफाई करना। तो शायद इस तरीके से आप जो है आपका पेपर एक्सेप्टेबल हो जाए, लेकिन अनलेस कि आपने इन तमाम चीज़ों को नहीं फॉलो किया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पब्लिश अ सिस्टमैटिक सर्वे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं होते पब्लिकेशन के लिए अनलेस यू आर अ बिग शॉट, unless you are a very high unless you are an expert in a domain, you have a very high number of citations। तो शायद जो है आपकी बात मान ली जाए, आपका लिटरेचर रिव्यू मान लिया जाए, क्योंकि कोई एक बिग शॉट है, कोई बहुत बड़ा बंदा है, वो सर्वे कर रहा है किसी चीज़ का, तो उसकी बात की वेटेज ज़्यादा होगी। लेकिन एज अ बिगिनर अगर आप सर्च लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, सिस्टमैटिक सर्वे कर रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी लो। अगर आप ये इन क्राइटेरिया को फॉलो करें तो you will have some chance to publish, लेकिन otherwise try to do experimentation। लिटरेचर रिव्यू है या सर्वे में ये होता है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, तो आपका काम बच जाता है, लेकिन फिर मुश्किल होता है पब्लिश करना।
नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर को पढ़ा कैसे जाए, हाउ टू रीड अ पेपर। जनरली पेपर्स को जो है एक दफा नहीं पढ़ा जाता बल्कि कई दफा पढ़ा जाता है, कई पासेस होते हैं जिससे पेपर को गुजारा जाता है। पहले तो आप सेलेक्ट कर लें पेपर को ना, स्टार्ट विद रीडिंग एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ द पेपर, पेपर के एब्स्ट्रैक्ट पढ़े और पेपर्स अच्छी क्वालिटी के सिलेक्ट करें। मैं हमेशा यही कहता हूँ और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ट्राई टू रीड लेटेस्ट जर्नल पेपर्स, अच्छी क्वालिटी के पेपर्स लेटेस्ट हो। जर्नल पेपर्स ज़्यादा सेलेक्ट करें, कॉन्फ्रेंस पेपर हो सकते हैं लेकिन ट्राई टू रीड जर्नल पेपर्स मोस्टली। पहले पास में आपको पेपर के मुतालिक एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको लेआउट से फेमिलियरिटी हो जाएगी। पेपर का लेआउट आप जो है, क्योंकि जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं या किसी लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं उसका लेआउट से भी फेमिलियरिटी होना जरूरी है। अच्छा यहाँ पे जो इस पेज पे एब्स्ट्रैक्ट बताया गया है, इस पेज पे इंट्रोडक्शन बताया गया है, 2 कॉलम पेपर है, ठीक है, ये हेडिंग यूज की गई है, फॉर्मेट इस तरीके का है पेपर का, तो लेआउट से फेमिलियरिटी हो जाती है, एक थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो जाता है कि व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, व्हाट प्रॉब्लम द ऑथर इज ट्राइंग टू सॉल्व। दूसरे पास में आप पेपर को पूरा पढ़े, पूरा पेपर समझ लें, और 2 दफा पढ़ लिया आपने तो इसका मतलब है पेपर समझ में आ गया। अच्छा, बाज लोगों ने 3 दफा भी कहा है कि 3 दफा जब पढ़ेंगे पेपर को, पहले लेआउट से फेमिलियरिटी, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और तीसरी दफा में जाके पूरा पेपर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 2 पासेस लिखे हैं, तो कम से कम 2 दफा पढ़ने के बाद जो है आपको पेपर पूरा समझ में आएगा। तीसरी दफा जब आप पेपर को पढ़े तो क्रिटिकली पढ़े कि इसने जो पेपर पे काम किया है इसमें क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो कम से कम 3 दफा जरूर पढ़ें किसी भी पेपर को, तो एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या रिसर्च गैप्स हैं, क्या काम हो सकता है, फिर अपने काम पे आए। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया डेवलप हुआ होगा आप लोगों को कि व्हाट इज रिसर्च, right, my dear students? I hope that things have become clear to you people. uh, so let me stop the recording, मैं recording stop करता हूँ।